एक SMS आया, सिर्फ एक, only one SMS for Mr. Amir Khan. The rest, everybody, just about everybody from all over the country has said, Mr. Chetan Bhagat is right. On this one, we love Amir Khan. He is the most brilliant actor of his generation, not just in India, but can be counted as among the most brilliant actors in the world today. But on this one, he is tripped. And I think he realizes that. That's why on his blog, he has distanced himself now from the entire controversy. He says that we must take an objective view and so on and so on. We'll come back to that. But at the moment with us, we have the pleasure to welcome our old friend, Professor Iyer. Professor Iyer, thank you very much for coming over here. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Professor Iyer, हम लोग पिछली मर्तबा बात कर रहे थे किस प्रकार पावर क्राइसिस है. There's a major power crisis looming right there in front of us. There's a power crisis, so naturally there's a water crisis. पानी के ऊपर इतना बड़ा संकट है, इतना बड़ा संकट है, पावर का इतना बड़ा संकट है. What is the government doing about it? क्या जो हमारी सरकारें हैं, अगर हम महाराष्ट्र से शुरू करें, if we talk about Maharashtra, do you think the Maharashtra government has actually taken the steps required to solve or resolve that crisis, or do you think they're still sleeping? सबसे पहले तो एक सरकार को अपनी जनता के साथ सत्यवादी रूप में पेश होना चाहिए. Yeah, they should be truthful. हाँ, तो ये तो पहले तो झूठ ही है. मतलब हम झूठ मतलब क्या? मतलब सरासर झूठ है. आज हम बता रहे हैं, जब ये दिलीप वलसे पाटिल साहब ने 2005 में ये 12,500 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट की बात की थी, तब हमने बताया था कि राज्य की परिस्थिति इतनी खराब है कि 3,000 मेगावाट की हमें ज़रूरत है और हमारी शॉर्टफॉल है. आज हम बात कर रहे हैं 2005 से हम 2009 में बैठे हैं. हम बोलते हैं ये बढ़कर केवल 4,500 मेगावाट है जी. हमारा ये कहना है ये 7,500 मेगावाट है. इस वक्त हम केवल अपनी फिगर को समझ रहे हैं और से भूल रहे हैं. और इस वक्त पूरे राज्य के अंदर इकोनॉमी के अंदर कम से कम 12 डोंबिवली नगर और जिस आपका स्वभाव है, इस तरफ वसई, जिस तरफ ठाण बैठ आ जाता है, वहां का ऑलरेडी 5 से 6% होता ही है. अभी मुल्क के अंदर 4 से 5 घंटे की होती है. मुल्क जैसे 2 घंटे की होगी समय और 2 से 3 घंटे. तो हमारी पावर आ चुकी है. No, but wait a minute. What do you say? After independence, we still don't have clean water. We still don't have clean electricity coming in for our people. Is that what you're saying? We don't have clean water and we don't have water now. Forget clean. Yes. Now we don't have electricity. Forget quality of power. We are not even discussing quality. We're only talking about whether power is there or not, right? Exactly. और ये अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा क्वालिटी के बारे में. हमारे घरों में जो बिजली आ रही है इस वक्त उसकी वोल्टेज इतनी कम है जो लोगों को मालूम नहीं कि आज हमारे जितने उपकरण हैं घरों में वो हमारे डैमेज हो रहे हैं. Every day. Yes, because of major fluctuation in power and everything else. I tell you what, we've got some statistics here for you. We'll get Professor Iyer to take you through them. Let's take a look at some of the full frame graphics that we've got. Let's take a look at that. आज की जो स्थिति है, let's take a look at that. Is जैसा कि उन्होंने कहा, जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, TPC at generation capacity over 1,850 megawatts in 2005 had planned coal-based 1,000 megawatt project at Ville and at Raigad. Now, is this coming through? Is this 1,000 megawatt plant? Is it coming through? Still, it is stuck with land acquisition. Right. Got environment clearance from the Environment and Forest Ministry, but it has still not. They've still not got it. Absolutely. Right. All right. They still haven't got it. That is the situation at the moment at BH at Bhal in Raigad. There are two districts. They had 2 power plants. 1,000 megawatt they wanted to put up at Bhal, and 1,000 at another location in Raigad, basically Ville. So they had 2,000 megawatt totally planned. And 1850 was already existing. And they intended to repower the existing unit at its Trombay plant site. Absolutely. Right. So and that didn't happen. That never happened. Okay. Right. Now and Reliance had proposed a 4,000 megawatt gas-based plant project near Patalganga in the Raigad district. Yeah. Has that happened? Zero movement. What are you talking about? Absolutely zero movement. And in fact, farmers have an agitation. They made a formation in Raigad showing a wind turbine, saying we don't want this type of power. We want wind turbine. Basically. Right. And Jindal submitted the DPR of 1,000 megawatt coal-based plant in the Ratnagiri district. Has that happened? No land acquisition. Nothing has happened so far. Nothing. All right, nothing. Ispat had filed its DPR for 1,000 megawatt coal-based project at Dolvi, where its steel plant operates. Yeah, they only will build a 350 megawatt captive power plant. They are not building for 3,000 megawatt they have promised. They have promised 1,000 megawatt at Dolvi, and they have promised 2,000 megawatt. No, but what about the 2,000 megawatt plant in Vidhar? What about that? No way, no movement. Absolutely no movement. No movement at all. No movement all right, at all. No movement at all. Right now, let's look at the rest of it. Let's look at the rest.
This is getting to be absolutely crazy. SR for its 1,000 megawatt thermal project. What about that? It's on paper. That's also on paper. So Reliance is on paper, SR is on paper, Ispat is on paper. Yeah. And what about GMR? GMR, it's already withdrawn, silent about the project. They're silent about the project. Yeah. So what is left? That means Only the 500 megawatt spectrum, it is nowhere to be seen. The US company has returned back. the US company has gone back. So all the 12,500 megawatt is hogwash. It doesn't exist. यानी 12,000 मेगावाट की जो बात हो रही थी, दिलीप वलसे पाटिल साहब ने एमओयू साइन किए थे 2005 में 12,000 मेगावाट के लिए, और उस वक्त भी ये बात उठाई गई थी कि ये तो सिर्फ पेपर पर है, उसके बाद क्या होगा। और वो आरकेबी शो में ही हमने बात की थी, बड़ा डेंजर हो सकता है इसमें। That's right. कि हम ये पेपर की बात कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली नहीं आएगा। तो आज हम 4 साल बाद इधर आरकेबी शो में वही बात कर रहे हैं कि आज हमारा कोई मूवमेंट नहीं है इसमें, और स्टेट के साथ ये एकदम सरासर नाइंसाफी, झूठ, फरेब, एक तरह का फ्रॉड किया गया। So out of all those MOUs that Mr. Dilip Valse Patil had signed as power minister, क्योंकि सबसे पहला जब पावर क्राइसिस हुआ था उस वक्त हाहाकार मच गई थी हर जगह पे पावर को लेकर के, उसके बाद 12,000 मेगावाट के लिए ये सब हुआ था, लेकिन up till now nothing has happened. कुछ नहीं हुआ है, Right. कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुआ है। So which means the shortfall at the moment, which is about 7,500 megawatts per day, will go up to 10,000 megawatts. Absolutely by 2012. मतलब 2012 तक, जहां पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि 2012 में हम लोग वी विल बी अ पावर सरप्लस स्टेट, वहां पर हम तब भी शॉर्टफॉल होगी 10,000 मेगावाट की, ये कहना चाह रहे हैं पहला तो झूठ था जी, और हम उससे भी कुछ आगे कुछ कर रहे हैं। तो वो आप इमेजिन करिए कि लोगों को त्राही त्राही मचा के हम बोलेंगे कि हम बिजली दे रहे हैं और नहीं देंगे, तब तक इलेक्शन आ जाएगा और इलेक्शन में कोई नई प्रोमिसेस से कोई जीता जाएगा। बिजली, पानी, सड़क, ये सवाल ही Now नहीं these are the ongoing thermal power projects, and I don't even know how many of them will actually see the light of day. We don't really know that, but I think work is going on these, isn't So it? let us assume, I am assuming that all of them will come up. Okay. And in my report I say, okay, 4,750 megawatt. They are precisely 4,770, but I'm saying 4,750 megawatt come up, but come up by 2012. When we will actually need much more than that. Today I need 23,000 megawatt. That time I will need 30,000 megawatt. So I am short by 10,000 megawatt. Straight. मतलब 2012 में भी महाराष्ट्र में 10,000 मेगावाट की बिजली की कमी रहेगी। Absolutely. यानी इस वक्त जो कमी है वो उस वक्त भी रहेगी, बल्कि आज जो कमी है वो सिर्फ 7,500 मेगावाट की है, जो हम लोग ग्रिड से, सेंट्रल पावर ग्रिड, नेशनल पावर ग्रिड से हम लोग खरीदते हैं, पूरी नहीं खरीदते हैं, सिर्फ सिटीज के लिए खरीदते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल इलाकों के लिए खरीदते हैं, वो 10,000 मेगावाट हो जाएगी। हाँ, उसका कारण बड़ा क्लियर है। अभी एक सर्वे आया है कि देश की परिस्थिति और हालत अच्छी हो रही है, और इसमें जो आगे बढ़ने वाले स्टेट है उधर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। That's right. अब जब ये होगी, So once again, let's go through it again. The TPC proposal still at the moment there's no land acquisition which is taking place. It is not not happening. यानी टाटा पावर का जो proposal है उस पे land acquisition अभी तक नहीं हुई है, वो कुछ नहीं होने वाला उसमें। That's what is happening. नहीं हो सकता है, लेकिन अभी 2-3 साल लगेंगे होने। No, but even if it happens now, it will take at least 4 It will years not before come in it this will go. plan. It will not come in this All right. plan. And the Trombay plant site, which it intended to repower, is They that are going to not there. happen? It's just inefficient for them to do that. And as far as the Patalganga Raigad district project is concerned of Reliance, that is not happening. Nothing. 4,000 megawatts, not happening. All right, now please pay attention everybody. ये जिंदल का जो पावर प्लांट है जयगढ़ रत्नागिरी में, वो भी नहीं हो रहा है। वो अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन वही बात है कि वो करेंगे, शायद वो अगले प्लान में आएगा। No, but it's not happening right now. Absolutely, this plan Right. minus. Ispat not happening right now. No. Ispat not happening. So 2011, 2012, no. So let's take a look. It says Reliance not happening, Tata Power not happening, Jindal not happening, Yes. Ispat also not happening. Not happening. Right. So which means a huge fraud has been pulled off on the people, and SR again not happening. It's only on paper. So all the four major electricity projects that we had talked about, and GMR also not happening. Not happening. All right, GMR. There's the fifth. Again not happening. याद रहे महाराष्ट्र सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे इन सब लोगों के साथ, और एक प्रोजेक्ट में भी कोई मूवमेंट नहीं हुई है। जहां तक रिलायंस एनर्जी का सवाल है, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जहां तक रिलायंस का सवाल है, रिलायंस को अब तक जहां जहां पर पावर प्लांट बनाने थे वहां पर एक तरीके से इजाजत दे दी गई है और दूसरे हाथ से इजाजत ले ली गई है। जहां पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है वहां पर लैंड एक्विजिशन नहीं हो रही, जहां पर सब कुछ तैयार है और एक्सपेंशन करनी है जैसे धानु में करनी है, वहां पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रही है, वहां पर जजमेंट आ गई है हाई कोर्ट की। लिहाजा जहां तक सरकार का प्रश्न है, यहां पर सरकार का रोल
शक के दायरे में आता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एंड वी कम टू योर आंसर जस्ट आफ्टर वी टेक अ लुक एट द क्वेश्चन ऑफ द डे, सरकार का आखिरकार क्या रोल है? Why is the government not acting like a facilitator? Now, let's look at the question of the day. Let's look at the question of the day. This is the question of the day for all of you. ये सवाल याद रखें, 2012 में भी 10,000 मेगावाट की कमी होगी। बिजली और पानी को लेकर देश में मचने वाला है हाहाकार। हाहाकार मच चुकी है, ऐसा नहीं है कि मचने वाली है, हाहाकार मच चुकी है। बिजली योजनाएं ठप पड़ी हैं, पानी पर होने वाली है जंग, और अभी जंग हो रही है। जैसा कि आपने कल ही देखा, अकोला में 2,500-3,000 लोगों की भीड़, जिसमें झड़प हुई, मारपीट हुई, बहुत लोग जख्मी हुए। दिल्ली और मुंबई में पानी और बिजली को लेकर के जो संकट है वो और बढ़ने वाला है, और ज्यादा बढ़ने वाला है। आजादी के 62 सालों बाद भी ना पानी है ना बिजली है। ये किस किस्म की आजादी है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, आखिरकार पहली आजादी हम लोगों ने लड़ी अंग्रेजों से आजादी के लिए, क्या अब हमें बिजली और पानी के लिए आंदोलन करना पड़ेगा? क्या आप खुश हैं सरकार से, या फिर बिजली पानी पर आप सब लोग आएंगे सड़क पर? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। बिजली और पानी हम लोगों का हक है, हम देश के नागरिक हैं, हम नागरिक हैं इस देश के। क्या बिजली और पानी सिर्फ मंत्रियों के घर के लिए ही है? क्या हमारे लिए नहीं है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या आप खुश हैं सरकार से? आप आरके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें, जहां पर आप हमें देख रहे हैं। टाइप करें पावर, दैट इज POWER, Y for yes if you're happy with the government, and N for no if you're not happy with the government. इस वक्त की जो वस्तुस्थिति है बिजली को लेकर, पानी को लेकर, क्या आप लोग उससे खुश हैं? क्या आप लोग खुश हैं इस स्थिति से? प्रोफेसर अय्यर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अय्यर, आप बताएं, क्या ये स्थिति और गंभीर होने वाली है? इज इट गोइंग टू बी इवन वर्स देन इट इज टुडे, और डू यू थिंक इट विल इंप्रूव? डू यू थिंक देयर आर एनी साइंस एट ऑल ऑफ इंप्रूवमेंट? देखिए, झूठ बोलने वाली बात की इंप्रूव होगा। इंप्रूव तब होगा जब सरकार में जिद होगी कि इसको करके देना है। लोगों के साथ झूठ और फरेब करने की जगह वो लोगों के लिए इन सर्विस करें। देखिए, सबसे पहले हमें ये, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कोई स्टेट हो, हम शासन बोलते हैं। हमें शासन की साइकोलॉजी से सर्विस की साइकोलॉजी में आना पड़ेगा। वी आर इन द सर्विस ऑफ पीपल एंड नॉट रूलिंग। एवरीबडी सेज वी रूल द स्टेट, नोबडी रूल्स द स्टेट। पीपल वोट यू टू पावर एंड यू आर इन सर्विस ऑफ द पीपल। जब तक ये चीज़ नहीं समझी जाएगी, नेता अपनी कुर्सी को इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे। मेरे ख्याल से वो इसी तरह से बिजली और पानी और सड़क को और हर चीज़ को इसी तरह से ट्रीट करेंगे। But I still can't figure out why would they want to do that? Because at the end of the day, it helps them. If there is more power in the state, it helps everybody. It helps them too. Why don't they do it? Because India is a democratic anarchy. We never decided to be a democratic power. We wanted to be an anarchy. We wanted to make promises and never deliver it. 60 years of this habit is now becoming more habitual, and we have become deep-skinned or thick-skinned not to execute what we say. 5 साल तक देखिए, मंत्री को इसमें कोई फायदा नहीं होता उसके हिसाब से। 5 साल वो अगर प्रॉमिस करे, 5वें साल के बाद वो किसी धर्म या किसी जात या किसी और लड़ाई में आपको लगा के इसमें से निकल जाएगा। आपकी वोटिंग पैटर्न किस पे होती है? धर्म और जात पे होती है। पानी और बिजली मुद्दा नहीं बना। जब तक हम मीडिया मुद्दा नहीं बनाएंगे, आपके जैसे लोग लेमन टीवी पे इस मुद्दे को नहीं लाएंगे, तब तक कैसे होगा? मेरे को बताइए, मीडिया कितनी बिजली पानी सड़क को ऊपर लाती है? तो हमारा कहना है कि इसमें सब जिम्मेदार हैं, हमाम में सब नंगे हैं। Not as far as we are concerned, all right? As far as we are concerned, बिल्कुल, मैं ये मानता हूं we've been talking about. लेमन टीवी ने ये मुद्दा लाया, लेमन टीवी ने बिजली की बात करी, आपने अपॉर्चुनिटी दिया कि इस सब्जेक्ट को लाया जाए, तो इसलिए आगे गया। नहीं तो हम तो सारे एक साथ मिले हुए हैं और बिल्कुल कोई इस मुद्दे में बात नहीं कर रहा। Now, as far as we are concerned, just Maharashtra alone, we're talking about a 10,000 megawatt shortfall. What about the rest of the country? Do we have any statistics with the rest of the country? बिल्कुल, I want to give all your viewers who are watching right now कि देश में इस वक्त इतनी विफल परिस्थिति है कि देश का 50,000 मेगावाट पीक डेफिसिट है। 50,000 मेगावाट। इस वक्त हमारा टोटल प्रोडक्शन 1,60,000 मेगावाट है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। उसमें भी हमको और 50,000 मेगावाट चाहिए। इसका मतलब हमारे यूपी बिहार में आज 2 या 3 घंटे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बाकी टाइम नहीं मिलती है। बिहार में तो हमारे कुछ पॉलिटिशियन साहब में बोलते हैं आपको तो लालटेन की जरूरत है, बिजली की क्या जरूरत है? तो हमारी साइकोलॉजी ये हो गई है कि हम लोगों को वंचित ही रखें और उनको बोले इसकी तुम्हें क्या जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात वही हुई जैसे कि एक बहुत बड़ी पार्टी ने ये कहा था, उसके उस वक्त के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, लिहाजा उनको बिल्कुल गलत ब्रीफिंग दी गई। मैं ये मान करके चलता हूँ, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी खुद ऐसी बात कभी नहीं कर सकते।
पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये कहा था कि कंप्यूटर को बैन किया जाए उत्तर प्रदेश में। ये तो वही बात हो गई। बिल्कुल। आज की तारीख में जिस प्रकार बिजली और पानी का क्राइसिस है मुंबई में, दिल्ली में, स्पेशली अगर मुंबई और दिल्ली की बात करें, एक आर्थिक राजधानी और एक राजनीतिक राजधानी, एक राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली और एक आपकी आर्थिक राजधानी यानी मुंबई, दोनों में बिजली और पानी का इतना बड़ा संकट है, पानी नहीं मिलता है। यहां तक कि हाल ही में एक अखबार ने ऋतिक रोशन के घर में जिस प्रकार का पानी आता है, जुहू में रहते हैं ऋतिक रोशन, उनके घर में पानी नहीं आता है, गंद निकलता है नलके में से, वो दिखाया था। इसी प्रकार दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके हैं, बड़ी पॉश कॉलोनीज हैं, जहां पर कीड़े निकलते हैं नलके में से। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 62 बरस हो गए हैं आज़ादी को, 62 बरस हो गए आज़ादी को, इस प्रकार की तानाशाही हम कब तक सहते रहेंगे? कब तक सहते रहेंगे हम? कब तक हम यही कहते रहेंगे भाई हमारी किस्मत ही ऐसी है? क्या वक्त नहीं आ गया कि हम लोगों को सड़क पर आना चाहिए? मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं। हो सकता है कि आपके घर में इस वक्त एसी चल रहा हो, दिल्ली में चलिए बहुत ठंड है इस वक्त, आप एसी नहीं चला रहे होंगे, लेकिन बड़ी कंफर्टेबली, बड़े आराम से आप घर के अंदर बैठ करके टेलीविजन देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप टेलीविजन नहीं देख रहे होते तो आप मुझे एसएमएस नहीं कर रहे होते। लेकिन यानी आपके घर में इस वक्त बिजली है, लेकिन आपके आसपास के इलाके में क्या बिजली है? क्या आपके आसपास के इलाकों में पानी है? उत्तर प्रदेश जो दिल्ली के बिल्कुल साथ सटा हुआ है, वहां पर हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए, कई ऐसे इलाके हैं हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए बिजली आती है, एक हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए। ये सूरत हाल है। बिहार में कई ऐसे इलाके हैं, जैसे प्रोफेसर अय्यर ने अभी भी बताया, वहां पर बिजली का नामो निशानी नहीं है। यानी लाट साहब का जमाना, यानी अंग्रेजों का जमाना, उस जमाने में जो हाल था, ना बिजली था ना पानी था। हाँ, पानी जो कुएं का जो पानी था वो साफ हुआ करता था, क्योंकि पोल्यूशन इतना नहीं था, प्रदूषण इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। तो आपके जो पारंपरिक तरीके थे जिनसे आप पानी कलेक्ट कर सकते हैं, पानी एकत्रित कर सकते हैं और पी सकते हैं, वो मौजूद थे। आज हमने उनको भी प्रदूषित कर दिया है। जब इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने प्रदूषित कर दिया है, तो आखिरकार वो दिन दूर नहीं है, जो मैं देख रहा हूं वो दिन दूर नहीं है कि हम सब लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। जैसे रिलायंस एनर्जी के खिलाफ हम सब लोग सड़क पर उतरे और आखिरकार रिलायंस एनर्जी की मोनोपोली टूटी। दिल्ली, मुंबई, दोनों जगह पर, हर जगह पर मोनोपोली टूटी। और यहां पर मैं श्रेय जरूर दूंगा हमारी पूरी टीम को। दिल्ली और मुंबई में लेमन टीवी और चैनल 1 दोनों ने मिलकर के काम किया और आखिरकार रिलायंस एनर्जी की मोनोपोली टूटी। और आज की तारीख में आपके पास हक है कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बिजली ले सकते हैं। वही चीज करनी पड़ेगी अब बिजली की किल्लत को लेकर के और पानी की किल्लत को लेकर के। डू यू थिंक प्रोफेसर अय्यर, एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल हैव टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड डिमांड व्हाट इज देयर्स? Absolutely. People must come out of the street. People must use the Right to Information Act. That because, see, the fundamental information is why I am not getting electricity. जी. Why I am not getting electricity for 6 hours. Right. Why this cut is not informed. Why I am getting a staggered cut without any information. That's right. Many times the cuts, the staggered cuts are scheduled cuts. अनस्केड्यूल्ड कट्स भी 1-1 घंटे के हो रहे हैं आज जी। आज ट्रांसफार्मर फेलियर, महाराष्ट्र के अंदर एक सर्वे हुआ है कि जो ट्रांसफार्मर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिससे बिजली आपके घरों में भेजी जाती है या कॉलोनीज में भेजी जाती है, उसमें 22% फेलियर रेट है, विच इज़ वेरी हाई। मैंने इसी फिगर को गुजरात के लिए देखा। गुजरात की फिगर एक गवर्नमेंट कंपनी मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड या दक्षिण गुजरात में उसकी 5% है, तो महाराष्ट्र में 22% क्यों है? ये सवाल हम क्यों नहीं पूछे? अब दोनों ही डेवलप्ड स्टेट है, चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो। चलो ये छोड़ दीजिए, आंध्रा का ले लीजिए। आंध्रा के अंदर फेलियर रेट ऑफ ट्रांसफार्मर इस वक्त 8 या 9% है। हमारे यहाँ फेलियर रेट 22 से 25% क्यों है? राइट। तो ये बात पूछनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर महाराष्ट्र की 22 और 25% है, मेरे ख्याल से हमारा स्टैंडर्ड है, किसी झारखंड या किसी बिहार का स्टैंडर्ड है, उसमें तो कोई बिजली जाती नहीं है, वहाँ फेलियर की बात ही नहीं है, ट्रांसफार्मर चलते नहीं है। तो हम धीरे धीरे महाराष्ट्र की परिस्थिति उन स्टेट्स के अंदर लेके जा रहे हैं जो आगे नहीं जा सकते जी। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हम बोलते हैं हमको नौकरियां देनी है, हम बोलते हैं हमारे बच्चे आगे पढ़ें। अब रूरल इलेक्ट्रिसिटी में आप 16 घंटे उसको आप बोलते फ्री बिजली देंगे और 16 घंटे बिजली नहीं देते, 18 घंटे बिजली नहीं देते, वो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? गाँव का वो ऊपर नहीं आएगा। अल्टीमेटली उसकी जो परिस्थिति होगी अगले नस्ल की, उसकी ये परिस्थिति होगी, उसके पास बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, वो आपके देश पे एक बोझ, अपने ऊपर भी आप देश के ऊपर बोझ बना रहे हो उसको। आप उसके पास जो एक पावर थी जी कि वो बिजली के साथ पढ़ाई कर ले और आगे निकल जाए, वो चीज़ भी आप उससे छीन रहे हैं। और हम अपने घरों में, शहरों में आराम से बैठे हुए हैं, हमारे को जो बिजली मिल रही है, हम बैकअप लगा लेते हैं, यूपीएस लगा लेते हैं और हम रोड पे नहीं आ रहे हैं। इसलिए आंदोलन बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपने खाली शहर को बचाना चाहते हैं, देखिए मुंबई के साथ क्या हुआ। सन 2005 में जब हम लोग बैठे थे, आपने ये मुद्दा उठाया
उस टाइम पे 12,500 मेगावाट, आज हमने किया नहीं। हमने बोला कि मुंबई का आइलैंड सेव्ड है। जी, मुंबई का आइलैंड कैसे सेव्ड है? 30 लाख लोग सेव्ड हैं, जबकि आज 2.2 करोड़ की आबादी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहती है। राइट। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि मुंबई अब मुंबई नहीं रहा वो वाला। अब ठाणा, अब कल्याण, अब बदलापुर, अब बेलापुर, नवी मुंबई, वसई, उसके भी बियॉन्ड बोईसर तक हमारा मुंबई है। एमएमआर रीजन है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, इसके अंदर 2.2 करोड़ की आबादी हो चुकी है। इस वक्त हम 5वें सबसे पॉपुलस अर्बन रीजन इन द वर्ल्ड हैं। दैट्स राइट। हम इसको वंचित कर रहे हैं, हम इसको दुनिया की अर्बन रीजन, वर्स्ट अर्बन रीजन में बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मेरे ख्याल से कोई और कंट्री भी नहीं देगी। शायद हम अपने आप को सबसे वर्स्ट के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट से नहीं। That's right. Now, which means that we are looking at a major crisis, say in another 2 years. 2 बरस के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, और ये क्राइसिस और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगा अगर सरकार एकदम कदम नहीं उठाती। क्या सरकार कदम उठा रही है? देखिए, सरकार तो आराम से बैठी है। इस वक्त मेरे को नहीं लगता कि कोई नए प्रोजेक्ट्स प्रॉपर वे में क्लियरेंस में जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को कोई एनकरेजमेंट नहीं है इस स्टेट में। अब ये आप देखेंगे कि सेंट्रल प्लानिंग कमीशन का कहना है कि 12वें प्लान में करीब 70% जो पावर डेवलपमेंट होगी वो प्राइवेट सेक्टर से होगी जी। लेकिन हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये 12,500 मेगावाट के प्रोजेक्ट एक भी नहीं निकले हैं। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर को किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लगा और सरकार ने उसको कोई हेल्प नहीं दिया। मतलब लैंड एक्वायर नहीं हुआ, मतलब लैंड आपको मिला ही नहीं। अब लैंड मिला ही नहीं तो बिजली कहां से बनाएंगे? वो बिजली का प्लांट तो तब बनाएंगे ना जब लैंड हाथ में आ जाएगा। राइट। और अब सरकार बोल रही है, पिछले मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि महाराष्ट्र के अंदर किसी भी प्राइवेट कंपनी को लैंड एक्वायर करके सरकार नहीं देगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर को लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर लैंड एक्वायर करने की परिस्थिति में है ही नहीं। उनके पास ना तो स्किल है, ना वेयरविदल है, और ना ही वो लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा या ऐसे कोई मुद्दे होंगे या ऐसा कोई मास मुद्दा आएगा उसको हैंडल करने के लायक नहीं है प्राइवेट सेक्टर। तो ये जब तक सरकार इसमें खुद नहीं आएगी और इसके अंदर अपने पैर नहीं डालेगी, लोगों के बेनिफिट में काम नहीं करेगी, तब तक ये हमारा कोई भी परिस्थिति बदलने का चांस नहीं है। सरकार सीरियस नहीं है। So what are we looking at then? What is this worst case scenario? Let's look at the worst case scenario. What will happen? We will be compared with Somalia, Ethiopia. So which means very shortly we are looking at power cuts in Mumbai. Yes. We are looking at 10-hour and 12-hour power cuts in Mumbai as well. Absolutely. As used to keep happening in Delhi, and I think will start happening again. Absolutely. दिल्ली में भी उतने ही पावर कट होंगे, वैसे ही मुंबई में पावर कट होंगे। बिल्कुल। राइट। पानी आपको मिलेगा नहीं, वैसे भी नहीं मिलता है, अभी भी गंदा पानी मिलता है। क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एट द मोमेंट इन मुंबई इज एंड इन दिल्ली इज अमंग द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। Absolutely. नंबर 2, as far as we are concerned, finally there will be water riots. आखिरकार दंगे होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये अगर आप पब्लिक की बेसिक एमिनिटीज ही नहीं दे रहे हैं तो उनको कोई और चीज नहीं रह जाएगी, केवल आंदोलन ही कर सकते हैं वो। Right, you heard him. So what are the solutions? Let's talk about the solutions. What can the government do? देखिए, सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जी, जैसे कि बताया। चाहना मतलब विल, पॉलिटिकल विल और पर्सनल विल। जैसे सबसे पहली बात है, सरकार को प्राइवेट सेक्टर और गुड सिटीजन्स, चाहे रिटायर्ड जज हों और पब्लिक की बॉडीज बनाना चालू कर देना चाहिए। उनको खुद प्लानिंग करने से पहले एक स्टेट लेवल की प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो सरकारी नहीं हो, जिसमें सरकार हो, जिसमें मीडिया हो, जिसमें पब्लिक हो। इस तरह की एक पहले बॉडी बनानी चाहिए और उसको इमीडिएटली वॉर फुटिंग पे कि अगले 2 साल के अंदर स्पीडी वे में हम 5 से 6,000 मेगावाट मिनिमम कैसे लाएं 2 साल में। ये आपको पहले स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ेगी। अगर आप बिजली का मुद्दा सॉल्व करना चाहते हैं, 2 साल के अंदर आपको 6,000 मेगावाट बनाने पड़ेंगे। Is that possible? पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है मेरे How? पास। अभी देखिए, बड़ा सिंपल प्लान है। सबसे पहले तो हम ये बड़े बड़े पावर प्लांट को छोड़ दें। जी। सबसे पहले कि हम ये 1,000 मेगावाट, 2,000 मेगावाट, 5,000 मेगावाट की बात करना बंद करें। हम छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर बनता है। जा। हम डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की बात करें। हम उसकी बात करें कि हम कस्बे, सूबे, गांव, शहर, इनको अलग से रख के इनकी क्या जरूरतें हैं इसके लिए प्लान बनाएं, ना कि पूरे स्टेट की बात करें, प्रॉमिस करें, उसको नहीं डिलीवर करें। सबसे पहला मुद्दा ये है मेरा। और दूसरा, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा चांस है। देखिए, सौर ऊर्जा, जी, सूरज तो परपेचुअल कंटिन्यूस अवेलेबल है। हमने इसी चैनल में पीछे भी बात करी है और आपने उस मुद्दे को उठाया उस टाइम पे। सोलर इज द बिगेस्ट एनर्जी एंड दैट्स राइट, एंड इट्स अवेलेबल एवरीवेयर एंड महाराष्ट्र अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी वाइज हैज नो सोलर पॉलिसी।
And the worst part is it is the sun which is your biggest power generator, Absolutely. energy generator, which powers the earth anyway. एब्सोल्युटली, पूरी धरती का जो ऊर्जा केंद्र है वो सूर्य है, बिल्कुल। और हम लोग सूर्य को इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ कोई पॉलिसी भी नहीं है, सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर सौर ऊर्जा का इनिशिएटिव जो नेशनल सोलर मिशन डिक्लेयर हुआ है, अगर महाराष्ट्र उसका एक रेप्लिकेट प्लान बनाए तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के सारे विलेजेस को सोलर इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। और अर्बन सेंटर लाइक मुंबई को 30 to 40% इलेक्ट्रिसिटी कैन कम फ्रॉम सोलर पावर। Right, and that would be a huge saving. So That which is a means huge immediately, which means immediately your 10,000 megawatt shortfall 2 years later comes down. Absolutely. Immediately comes down, and it comes Absolutely. practically on par. Absolutely. Almost on par. Absolutely. So which means you'll get 24-hour electricity. Absolutely. And today, with clean climate change and these discussions happening, India under pressure, India can attract funds. Maharashtra is an attractive state. It will attract huge investment in solar power because green energy funds will be immediately diverted to you. आज परिस्थिति ऐसी है कि इसमें पैसा भी मिलेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपका लग जाएगा, और आप गांव वालों को बोल रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे। देखिए, सच्ची में अगर आप सोचें, हमारे अगर सारे महाराष्ट्र के गाँव को अगर एक टाइम हम सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के दे दें तो हम जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मुंह से बोल रहे हैं उसको करके दिखा सकते हैं। क्योंकि मेंटेनेंस करना, केवल मेंटेन करना सोलर सिस्टम को डिसेंट्रलाइज फैशन में केवल 50 पैसे पर यूनिट लगेगा। 50 पैसे पर यूनिट लगेगा केवल, क्योंकि आप कैपिटल कॉस्ट को इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में डिफरे कर आप लगा के उनके ऊपर चार्ज नहीं लगा सकते। आपने 60 साल प्रॉमिस किया झूठा वाला, अब सच्चा वाला करिए। आप सभी गांव को सोलर बिजली दीजिए, कम से कम एक बल्ब और एक फैन चले उनका, और उनको एक बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करवाइए। जे-नूर जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की बात करते हैं, उसमें से ये पैसा दीजिए स्टेट को, और वो पैसा उसको मॉनिटर करिए पब्लिक कमेटी से, सरकारी कमेटी नहीं होनी चाहिए। That's right. वो कमेटी, Perhaps Mr. Rahul Gandhi can take a look at this. Definitely. When Mr. Rahul Gandhi talks about rural development, जब राहुल गांधी बात करते हैं गरीब से गरीब शख्स के घर में जाने की और कलावती के घर में खाना खाने की, बिल्कुल, अगर राहुल गांधी सोलर पावर की तरफ अगर ध्यान दें, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर की तरफ अगर ध्यान दें, विंड पावर की तरफ अगर ध्यान दें, सोलर पावर की तरफ अगर ध्यान दें, तो हो सकता है कि हिंदुस्तान की जो पावर नीड्स हैं, जो बिजली की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत हद तक उसका समाधान मिल जाएगा, वो सुलझाई जा सकेंगी। लेकिन अगर ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे, पारंपरिक तरीके से चलेंगे, वहां पर मुझे जो लगता है हजारों करोड़ लोग पैसा कमाएंगे। बिल्कुल, हजारों करोड़ों की कमाई होगी, लोगों की जेबों में जाएगी। बिल्कुल। राहुल गांधी साहब, आपकी पार्टी चलेगी, कांग्रेस पार्टी फर्स्ट क्लास चलेगी अगर आप पारंपरिक तरीके से ही चलते रहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े आप पावर प्लांट बनाएंगे और उन पावर प्लांट्स का जो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट होगी, आगे जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी, उसमें से किकबैक मिलेगा, सब लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, यानी जो पावर में इस वक्त हैं। लेकिन एक दिन लोग, क्योंकि लोगों को उनमें से कुछ नहीं मिलेगा, एक दिन लोग खड़े होकर के आप ही के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दैट्स what has happened up till now, isn't it? Absolutely right, on the spot. Because अगर हम बोलते हैं कि हमें रूरल और अर्बन डिवाइड को खत्म करना है, सबसे पहले ये मास एक्सोडस जो होता है रूरल साइड से, क्योंकि वहाँ कोई रिसोर्स नहीं है, तो उनको पहले रिसोर्स मुहैया कराइए, उनके घर में बिजली पानी लाइए। और आज मैं आपको एक फिगर और देना चाहता हूँ कि हमारी जो रूरल इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं वो केवल 20% बिजली की खपत करते हैं। 70% पॉपुलेशन को केवल 20% बिजली की खपत मिलती है ऑन पेपर, और 20% भी वो खपत कर नहीं पाते क्योंकि उनको मिलती नहीं है बिजली। 20% तो हम पेपर में बोलते हैं कि हम इनको एलोकेट कर रहे हैं। देश की जो राजनीति इस तरह की हो गई है कि 20% एलोकेशन 70% पॉपुलेशन को मिलती है, राइट, और हम वो 20% भी उसको देते नहीं है क्योंकि बिजली जाती नहीं है। Right, and as far as we are concerned, let me tell you this. There are two things which are really and truly going to shape this year, 2010. 2010 में दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है उनका समाधान हमें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। एक तो बिजली पानी, ये तो बात हो गई आपकी रोज़मर्रा के जीवन की। इसके ऊपर अगर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करें तो ज़रूर आगे चल करके जो दूसरी समस्या है जो आपके सामने है, शायद उसके ऊपर कोई दंगल ना हो। जो मुसलमानों के लिए आरक्षण की जो बात है 2010 में, इसके ऊपर काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा होने वाली है पूरे देश में। और अगर हम लोग आज बिजली और पानी की जो समस्या है, अगर आज हम उसका समाधान निकाल लेते हैं तो हो सकता है कि आगे चल करके जितने भी हमारे तनावपूर्ण मुद्दे हैं उनका समाधान अपने आप हो जाए। वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू प्रोफेसर, आइए बिफोर वी टेक अ ब्रेक, बताएं। सी, मेरा ये कहना है कि आपने ऑन द डॉट बोला है, लेकिन हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। कोयले से बिजली प्रोड्यूस करना, हमें उससे बाहर जाना पड़ेगा। जी, थर्मल पावर, नो थर्मल पावर, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? आई एम नॉट सेइंग नो, आई एम सेइंग
reduce the interest in thermal power. Let it continue, but don't make it the page 3 document of yours. Coal makes 60% of your current electricity, but in 2020, renewables will make that 60% and not coal. Right, you heard it, you heard him. And by the way, we will continue with our agitation for a solution to water and electricity. Remember, 62 years of independence, 62 बरस हो गए हैं आज़ादी को, और अब तक हम लोग बिजली और पानी की समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आज़ादी के 62 बरस हो चुके हैं और 63वें बरस में हम लोग जा चुके हैं। We have entered the 63rd year of independence, 2010, and we still don't have clean water. In fact, there is no water, as Professor Iyer said. And as far as electricity is concerned, forget about clean power, there is no power. Professor Iyer, thank you very much for coming over here. Great pleasure talking to you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Right, we got to take a break. We got to take a very, very short break. When we come back, we will talk about reservations for Muslims, and then later on in the show, we will talk about all the suicides which have taken place all over the city and about corrupt cops. Why do cops go to underworld parties? We'll talk about that. Don't go away. We'll be right back.